लाइव। अगेंस्ट द लाइट आ रहा है मेरा। इधर बैठोगे बहुत, यहाँ पे पीछे लाइट है ना, फेस बहुत खराब लगता है, काला काला लगता है पूरा। अब वहाँ पीछे चलोगे सब लोग डिस्टर्ब होता है। नहीं तो आप एक और यहाँ की लाइट वो जलाओ जरा, लाइट, हाँ उससे कोई बड़ा ही चल। नहीं नहीं, ये तो खोलो यार, ये तो तुमने तो और अंधेरा कर दिया पागल, वो वाली खोलो एक बार। खराब है, तुम ट्यूबलाइट जला दो बस, ठीक है, वो बंद कर दो। गुड इवनिंग ज्योति जी, वेलकम टू द सेशन। कैन यू हियर मी? हाय रूही, वेलकम। हाय दिनेश, वेलकम। चिंतन भाई, वेलकम। We are waiting for Sunil bhai to get added and then we will start. Just give me some time. I don't know why he is not getting added. Jyoti, can you check with Sunil bhai and as to why he is not coming online? Is there any issue with him? Any challenge? Ah, yes. Now
Now the boss is Good there. evening, sir. Welcome, Sunil bhai. Very good evening, sir ji. Sanjay ji. It's your day today, and we want to Thank learn you. a lot of things about what you do. So let's wait for 5-7 minutes. Only 5 of our fellow members have joined. So let's give 5 more minutes and see who all are joining, and then we start. Okay, sure. In the meantime, I think we don't have any outside talk member, so no point describing talk. Ruhi is there, Dinesh Jain is there, Chintan Bhai is there. So a lot of friends waiting very eagerly to listen about your business. What does Lex means? Lex means lenient, I suppose. Lex, lex is a Latin word. It is lex means legal. Legal. But lexicon, So lex street is कायदे का रास्ता. Lex Street is? कायदे का रास्ता. हाँ, कायदे का रास्ता. Lex Street, अच्छा, okay. Now I got it. Okay. But lexicon मतलब तो डिक्शनरी होता है शायद. Lexicon, हाँ probably. हाँ. है ना, lexicon. Thanks Manisha ji for joining. We are waiting for our other friends to join and then we start. Just give us 5 more minutes. Okay, I'll start now. I think we have given enough time, 10 minutes now. Good evening, friends. My name is Sanjay Goyal and I am from a group called TALK. It's a group of professionals working in the construction related industries and they span from all over India. Like we have members from Delhi, from Jaipur, from Baroda, from Bombay, all over the place. It's a group of about 20 people, high-end professionals, and we are building up the team. We are in the process. We have started about 6 weeks back, and it has been a great going since then. And we are in the process of adding members in the uncharted categories. We keep our weekly sessions every Saturday. Every Saturday, the team meets for about an hour. We discuss about the ongoing big projects pan India and share information amongst each other so that each one of us can make use of the information and derive some business advantage. On following Sunday, that is the next day every week, we keep a session in which we detail profile of one of our members, and in that series today is the turn of my dear friend Mr. Sunil Agarkar from Baroda, who is a legal expert, and we would like to know more about his business as to what they are doing specifically with respect to construction industry. So welcome Sunil bhai. Thank A you. brief Good introduction evening. I would like to give about your company. Mr. Sunil's company is Lex Street Advisors LLP from Baroda. It's a law firm which incorporated by advocates and solicitors. They are assisting corporates, firms, LLPs, entrepreneurs and companies to find legal paths from complex laws in the areas of corporate and commercial laws, employment laws, dispute resolution, intellectual property, cyber laws, merger and acquisitions, foreign collaboration and JVs, real estate, banking and securitization, laws, inbound and outbound investment, private equity, financing and debt restructuring, as well as about sports laws. He just told me that Lex means legal, street means gully,
but their punchline is beautiful. कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. Okay. That's a wonderful tagline, Sunil bhai. Thank you. Sunil bhai is a physics graduate, so what we get from him is a cocktail of science and law both, which is a very rare combination. So he understands the nuances of engineering, also the problems construction professionals face. So what do you, Sunil bhai? Stage is all yours. Just introduce about your background as to when you started and what has been the experience so far. Okay, thank you, Sanjay ji. And thank you, TOC, for giving me opportunity to share some of my knowledge. I have done industrial experience in the industry in the engineering side, and then I started my law segment. So which year did you start your career, Sunil bhai? Which year did you start? I started my legal career in 2002. 2002. Okay, so we have 19 years of great experience. Okay, speaking. Yes, and as overall experience is of 7 more years. Okay. And so how big is the firm like? How many partners are there? We are 2 equity partners, and we have another 6 associated partners who are proficient in their particular segment and renowned in local area. Okay. We are registered offices at Baroda, but we have got offices at Bombay, Vapi, Delhi, Bangalore, Calcutta, and Pune. Oh, so you do projects pan India? You take cases of... Yes, we do pan India. We also help industries for cross-border transactions and cross-border legal advice. We also have a passive presence in 18 countries. Okay. I was not knowing that. Great. Okay. So what is specifically your area of expertise? I personally is more expertise into the labor laws, IPR, IT, and sports laws. And yes, and in the general operational side, if you say, then I'm into the legal strategy, legal strategy decisions के ऊपर, then contracts and litigation strategies that I'm more proficient, I personally. And as a law firm, yes, we are into the various segments. As you have already read out all the laws, I will not repeat the same. Okay, great. But my first question, as always, would be, what is the difference between a lawyer and an advocate? We, the non-lawyer people, get very confused as to who is a lawyer and who is an advocate. So can you just elaborate very quickly for all of us to know that difference? I would like to go through the simple definition. The one who practices law is a lawyer. Okay. But the one who has a practice, one who has a certificate or the license to practice in the court, in the litigation, is an advocate. So those who don't practice in the court are not advocates? No. Those who do not have license to practice in court, that is, हम लोग उसको सनद बोलते हैं. तो अगर लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन कोर्ट नहीं है तो वो एडवोकेट नहीं है, ही इज लॉयर. He may be he may be a LLB graduate, he may be chartered accountant, he may be company secretary, he may they are also practicing law. So they are also lawyers. But they can't get the license to present a client in the court. Huh? For that you need LLB degree. Yes, not in the court. They have in some of the courts they have some special permissions, like
NCLT and other company law board, and there they have got permissions to appear. So there they can appear, but they appear as their profession only, not as an advocate. Perfect. Okay. Now, will you elaborate about the contract law? What are the things our, like, we construction people should take care when we are booking an order from a client, or what are the general problems which you have observed come in a big contract of, let's say, 2 crores to 5 crores, because that is the range in which we all play. Right. Okay. I will keep it very common language. I will not That use will be any good. legal jargons or legal language. I will not use. I will use very simple language. So I will also restrict myself to a particular segment as inspector construction in industry as such. That starts from acquiring a land to construction of the building or the factory or the whatever use it is going to happen, and whatever the building, whatever type of the building is constructed on it. So And then it is the that interiors, also, that also comes as part of that construction. interior, then maintenance, repairing, everything is part of it. Correct. But as you before starting of the things, as you have elaborated, that we will be restricting ourselves in the actual construction and not from the property type side of the activity. So I will restrict my discussion on the construction and interior and that type of activities. Perfect. Yeah, tell me. Right. So mainly, as you asked, that business to business, because any building if we are making, then there are many vendors. First initiator is normally an architect. Architect is also vendor to the investor, the one who is investing in that particular building. So may it be I would say the residential building, commercial building, or manufacturing factory. So for all that, the investor requires first of all the architect. So I will start from there. Yeah, please. Now, architect's work starts from visualizing of the vision of the investor till it is it comes into existence and it starts getting utilized. Till that, everything that architect is required to do, it is a very long span of work. Now, हम अगर कुछ एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, आ जाते हैं, तो अलग बात है. लेकिन ये काम कैसा होता है, बहुत लंबा काम रहता है. कम से कम आप बहुत छोटा प्रोजेक्ट हो तो भी 6 महीने से चालू होके 2-3 साल तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब. ठीक है. So architect is connected with the investor for long period, and during this long period, lot of dynamics are happening. All these dynamics that affects in either way, positive or negative, either to the investor or to the vendor. Now, these dynamics, if they are not predefined, if they are not, if all investor and the vendors, both of them are not on the same same platform, then there are a lot of chances of getting the this problem popping up, issues will come up more. Now, to avoid it, it is always better to note it down, whatever responsibilities we both are sharing, and what
to what extent I am responsible for my activity. Now that is one part is the responsibility that we have defined. Another part is the commercial side. So what commercials are there? Now all commercials are cannot be said in one word. There can be a various activities, various way of dealing the particular activity. So different type of commercial plans are required to be defined. They are required to be डिक्लेयर्ड कि ये अगर ये कंडीशन आती है तो इस तरह से डील करेंगे, ये कंडीशन आती है तो इस तरह से डील करेंगे. और एज हम लोग ने बोला है लंबा चलने वाला काम है, गवर्नमेंट का कुछ चेंजेस आ गया तो क्या होगा. इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया है, वेंडर ने भी इन्वेस्ट किया है, तो दोनों को नुकसान कम हो, दोनों का इंटरेस्ट बच जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो प्रोएक्टिवली डिसाइड कर लेना ज्यादा जरूरी है. काम चालू करने के बाद दो में से एक पार्टी जो है वो कोई वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है या कुछ इशू होता है या कोई डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं वो ऑन देयर पर्सनल ग्राउंड और एनी अनवांटेड थिंग हैपन्स, तो इन दैट केस प्रोजेक्ट को क्या इम्प्लीकेशन आएगी वो चीज, वो जो एक्टिविटीज जो है वो अपने को कंट्रोल में लानी जरूरी है. उसके बाद अपने ने जो सम ऑफ द स्टैंडर्ड टर्म्स जो है वो पैटर्न्स जो है जो कॉन्ट्रैक्ट को डायनेमिक रखती है और उसको क्या बोलते हैं लगाम में रखती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से आगे बढ़ पाएगा. और ये जो भी चीजें हैं वो अगर हम लिख के रखे हैं, दोनों एक ही चीज समझे हैं और क्योंकि लिख के रखना भी उतना जरूरी है, लेकिन वो जो लिखा है वो दोनों एक ही बात समझे हैं उसको और दोनों उसको सही मायने में समझ के उसको उसी तरह से लेने के लिए तैयार है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने काम का है. नहीं सुनील भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए. सपोज जैसे आर्किटेक्ट का ने लिखा हिज जॉब इज टू डिजाइन द बिल्डिंग, लेट अस से XYZ. अब डिजाइनिंग इतना ब्रॉड वर्ड है कि इसमें लैंड का बिल्डिंग का डिजाइन होगा, कि इसमें जो पाइपलाइन जा रही है उसका डिजाइन होगा, जो एयर वेंटिलेशन है उसका डिजाइन होगा, या फ्लोरिंग का मटेरियल इसमें भी इंक्लूडेड है कि नहीं है, कौन सा सीमेंट लगेगा, कौन सा लेबर है, मतलब डिजाइनिंग एनकम्पासेस एवरीथिंग. तो वो उसको लिमिट कैसे करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो उसको कैसे करते हैं कि भाई ये यहाँ तक मेरा डेफिनेशन है, इसके आगे नहीं है, बिकॉज वी कांट गो इनफाइनाइट. बराबर. बिल्डर क्या रहते हैं, कोई भी चीज को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं. कंस्ट्रक्शन आजकल ऐसा एक्टिविटी है कि इट इनकम्पासेस सो मच कि बाद में कोई भी छोटा सा पॉइंट लेके कि ये लाइन यार स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, आपका टेढ़ा हो गया, वो उसको लेके डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा. वो बेचारा आर्किटेक्ट तो अपना काम करे कि वो लीगल संभाले, उनके पास तो लीगल की टीम रहती है, पूरी बड़ी सब रहती है. अब आर्किटेक्ट घबरा जाता है, जहाँ उसका नोटिस आया वकील का कि साहब यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी, तो उसमें वो कैसे अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, कैसे लिमिट्स डिफाइन होती हैं, ये थोड़ा सा गाइड करिए ना. अभी सबसे पहले तो अगर आर्किटेक्ट बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बिल्डर नॉर्मली ये केस के अंदर होता क्या है कि बिल्डर अपना कॉन्ट्रैक्ट देता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोग एंटर करेंगे. अभी आर्किटेक्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट पे आंख बंद करके साइन नहीं करना है. सबसे पहली बात तो ये है, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, समझना है, जहां पे नहीं समझे पूछ लेना है. अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, सबसे मेन इश्यूज कहाँ पे आते हैं, जो बॉयलर प्लेट टर्म्स होती है. वो क्या होती है कि वैसे दिखने में बहुत स्टैंडर्ड टर्म होते हैं, अपने को इन जनरल लगता है कि ये तो स्टैंडर्ड है, उसमें क्या है, तो होता ही है, अब अपने में यही प्रैक्टिस होती है. ठीक है. अब उसको अगर आप बाकी के पॉइंट्स के साथ अगर रिलेट करोगे तो हो सकता है कि वही बॉयलर प्लेट टर्म जो है वो
आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके अगेंस्ट में ले जा रहा है। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो इट इज एडवाइजेबल कि आप कोई भी लीगल एक्सपर्ट से उसको वेटिंग करवा लें, उसका रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये जो टर्म्स लिखी है उसको ये क्या कहना चाहता है, ये टर्म से ये क्या डिराइव करना चाहता है। वो चीजें एक दफा हम अगर क्लियर हैं तो हम हमारा कोटेशन जो है उसको भी अलग अलग पैटर्न से उसको डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा कि जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डिजाइन करना है, आपको बिल्डिंग डिजाइन करना है, जैसे आपने बोला बिल्डिंग डिजाइन करने में बहुत सारी चीजें आती है, तो आपको जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिफाइन करना है कि बिल्डिंग डिजाइन मतलब क्या है। उसके आगे का मैं करूंगी या नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये लेवल तक का है तो तो ये मेरा स्कोप रहेगा, अगर ये लेवल के बाद का है तो ये स्कोप रहेगा। अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस से डिफाइंड है, लेकिन वो प्रैक्टिस भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है। जो प्रैक्टिस दिल्ली में चलती है वो मुंबई में नहीं चलती है, वो बड़ौदा में नहीं चलती है, वो कलकत्ता में नहीं चलती है। हर एक शहर की अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है। तो अगर शब्द भले ही वो यूज किया जाए, तो मैं अगर बड़ौदा में बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं ये बोला है तो इसका मतलब यही है, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ और ही समझ रहा है। इसीलिए उसको डिफाइन करके कागज पे लिख लेना जरूरी है। तो उस अब ये हिसाब से बताइए अपने कि अपनी हाँ, जो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। अब आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिल्डर से या इन्वेस्टर से, उसके बाद जो अलग अलग वेंडर्स रहते हैं, लाइक इंटीरियर्स वाला एक वेंडर है, फायर फाइटिंग का एक वेंडर है, एक XYZ सप्लायर, पाइप सप्लायर एक वेंडर, तो हर एक को लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए क्या? मतलब ये तो फिर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिल्डर के साथ, बट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना डिफाइन तो हर एक आदमी को करना पड़ेगा ना, बिकॉज कोई भी फंसेगा तो उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, नहीं तो। हर एक आदमी को करना चाहिए क्या, ये सवाल का मैं जवाब थोड़ा उल्टा दूंगा कि क्या आपको अपना बिजनेस को सिक्योर करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ना ठीक है, मतलब इट्स योर डिसीजन कि आपको। हाँ, अभी ऐसा है, मेरे ध्यान में आए हुए जो एग्जांपल्स है उसके अंदर मैं एक एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये एग्जांपल ऐसा है कि जो एक बिल्डर है, वो बिल्डर ने एक सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया वर्बल, यार तू इतने सालों से भेज रहा है, ये भेज देना, ये देख लेना, ठीक है। वो बंदे ने काम चालू कर दिया, ये हो गया। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो जो बिल्डर है वो उसको जाना पड़ा भारत के बाहर, एंड रादर ही एक्सपायर्ड। तो उसके लड़के ने टेक ओवर किया। अभी ये वर्बल क्या बात हुई थी वो तो लड़के को मालूम नहीं थी। लड़का यंग है, वो अपने दिमाग से काम कर रहा है। जो प्रैक्टिकली पहले से मालूम है कि मेरे को ये 4 चीजें करनी है, उसके बाद भी वो लड़का बोल रहा है कि आपको तो ये 6 चीजें करनी है। दिस इज नाउ जनरेशन गैप। वो जनरेशन गैप उसकी इंडस्ट्री का, उसके फैमिली बिजनेस का जनरेशन गैप जो है वो वेंडर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। वेंडर को पेमेंट नहीं आ रहा है, सो वेंडर इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। वो उसका काम बंद कर सकता है, लेकिन काम बंद करने से उसका एक क्लाइंट भी तो लूज हो रहा है। नहीं, मैं आपको एक कट शॉर्ट तो कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैं इनवॉइस रेज करता हूँ अपना, या कस्टमर मेरे को पीओ देता है, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखता है, तो एक तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, एक मेरा जो इनवॉइस में जाता है वो सेल्स कंडीशंस हो गया, या मेरे ऑफर में जो जाता है वो सेल्स कंडीशंस हो गया। तो उन दोनों केस में से कौन सा वैलिड माना जाएगा? सपोज कोई डिस्प्यूट आ गया कल को, तो वेंडर तो बोलेगा मैंने अपने ऑफर में ये लिख के दिया था सब आपको कंडीशन, और वो बोलेगा मैंने अपने पीओ में आपको ये लिख के दिया था।
तो कौन सा वैलिड माना जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में? सपोज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये इशू आ गया कुछ। जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोनों पार्टी ने साइन किया है वो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, तो जैसे परचेज ऑर्डर आया उसके बाद हमने ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट जो इशू किया उसमें जो जो कंडीशंस हमने लिखा है वो माना जाएगा वैलिड, और वो कस्टमर का हाँ, साइन उसका होना जो चाहिए, stamped होना परचेज ऑर्डर के अंदर जो टर्म्स है वो जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो दैट विल बी फाइनल। चाहिए। इनवॉइस के ऊपर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो दैट तो विल जो नॉट सुपरसीड योर परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। में जो टर्म्स लिखा हुआ आ रहा है उसको हमको सबको पढ़ना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसा टर्म अगर है जो हमको नहीं एक्सेप्टेबल है तो उसी स्टेज पे हमको उसको हटवाना चाहिए या काटना चाहिए, है ना? उसी स्टेज पे वो डिस्कस करके उसका इशू रिजॉल्व करना चाहिए। ओके। और एक नॉर्मली चीज और होता क्या है बताइए कि हम लोग काम लेने की जल्दी के अंदर हम लोग वो चीजें पढ़ते नहीं है, या तो फिर अपने नोट कर को देते हैं। अपना ये बोलते हैं अरे तेरे को नहीं करना है तो मत कर, मैं किसी और को दे दूंगा। तो हम लोग क्या कहते हैं यार मेरा काम जा रहा है। हम्म, ये ओके जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से हमेशा लड़ना है। ओके। और एक चीज और बताइए कि ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ का होता है? जैसे सपोज मैं जयपुर बेस्ड कंपनी हूँ और मेरा प्रोजेक्ट हैदराबाद में चल रहा है और कोई डिस्प्यूट आ गया, तो ज्यूरिस्डिक्शन मेरा जयपुर का लगेगा जहां मैं बेस्ड हूँ, या फिर हैदराबाद का लगेगा जहां पे साइट चल रहा है? नॉर्मली जहाँ पे साइट चल रहा है वो रहेगा, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में जयपुर एग्री किया हुआ है दोनों पार्टी ने तो जयपुर लगेगा। अच्छा, ये होता है क्या? अच्छा, एग्रीमेंट में जो लिखा है वो एग्री होगा। जैसे मैं अपना इनवॉइस में आपने लिख देता दोनों हूँ। ने आप दोनों ने जो एग्री किया है वो फाइनल होता है। नहीं, मेरा इनवॉइस में वो स्टैंडर्ड लिखा हुआ आता है, सब्जेक्ट टू जयपुर ज्यूरिस्डिक्शन, तो वो वैलिड नहीं है? मतलब कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है कि जहाँ पे साइट होगा वो होगा जगह। नहीं, बट देन आपने एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया हुआ है जिसके अंदर आपने बोला हुआ है कि हैदराबाद जो है जुरिस्डिक्शन रहेगा, तो अल्टीमेटली वही रहेगा फिर। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ा गाइड करिए हमारे ऑडियंस को कि कोई एमएसएमई है तो उसको क्या कुछ एडिशनल राइट्स मिल जाते हैं? कल को पेमेंट नहीं आया, कुछ पेमेंट, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये बहुत इशू रहता है, डिस्प्यूट कर देते हैं वो लोग क्रिएट आखिरी में, और 10% 20% पेमेंट आपका रोक लेते हैं, जो आपका प्रॉफिट आने वाला होता है वो रुक जाता है सारा काम करने के बाद। तो इसका क्या रिजोल्यूशन है? आर इफ वी आर रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, डज दिस हेल्प इन एनी वे एडिशनली? मतलब मेरे लीगल राइट्स कुछ इंप्रूव हो जाते हैं क्या, बेटर हो जाते हैं? अगर आपका एग्रीमेंट है तो आपको एमएसएमई में के अंदर ज्यादा स्ट्रांगली फाइट कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली फाइट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि आप एमएसएमई के पास जाने से पहले आपके पास ये काम का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपके पास इनवॉइसिंग का बेस क्या है, वो चीज अगर डिफाइंड है तो एमएसएमई आपको ज्यादा अच्छी तरह से, नहीं तो फिर क्या है एमएसएमई को जो भी इश्यूज है उसको एज्यूम करना पड़ता है, और वो जो प्रैक्टिस है उस हिसाब से उसको सोचना पड़ता है। लेकिन अगर चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एमएसएमई की ऑफिस है वो आपको ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर सकती है, एंड यू कैन रिकवर दैट मनी। सो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें हमको लिखना चाहिए कि द वेंडर इज एन एमएसएमई रजिस्टर्ड दिस थिंग ब्ला 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 एंड द रूल्स एप्लीकेबल देयर विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिखना चाहिए हमको? अगर हम एमएसएमई है, हमको इतना ही डिस्क्लोज करना है कि हम एमएसएमई है। मैं एमएसएमई हूँ इतना डिस्क्लोज करता हूँ, इट इज सफिशिएंट इनफ कि एमएसएमई एक्ट इज एप्लीकेबल टू मी, और उसके अंदर जो रेमेडीज है वो मुझे एप्लीकेबल है। वो आप बोलो ना बोलो, लेकिन आपने अगर डिस्क्लोज किया है कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ देन इट इज सफिशिएंट इनफ। ओके। और जनरली छोटे सप्लायर्स को किस तरह के इश्यूज आते हैं वो आप थोड़ा अगर एडवाइस करेंगे हमारी टीम को कि भाई इन इन चीजों का आप स्पेशल ध्यान रखिए, तो दैट विल बी अ बिग हेल्प टू द ग्रुप। जो छोटे सप्लायर्स जो है उनके मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, सप्लाईज जो तो वर्बल होते हैं, और
छोटी छोटी चीजें थोड़ी ध्यान रखनी जरूरी है कि उनके पेमेंट टर्म्स और वो आप एक्सेप्ट करवा लो, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बड़ा ये नहीं है। आप अपने अगर 30 डेज या 60 डेज का क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट प्लान आप जो भी दिया है वो लिखा हुआ एक्सेप्ट कर लो, परचेज ऑर्डर आने के बाद सप्लाई करो। होता क्या है, जो नया क्लाइंट लेने के लिए हम अगर बिना परचेज ऑर्डर काम करते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जहाँ पे हम सालों से कर रहे हैं वहां पे होने के चांस कम होते हैं। वहां पे भी हो सकता है लेकिन चांस कम होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस बन चुकी है, तो उसमें प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। लेकिन अगर नया क्लाइंट ले रहे हैं तो प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ जाते हैं। एग्रीमेंट मतलब पूरे 4, 5, 10, 50 पेजेस का एग्रीमेंट हर वक्त जरूरी नहीं होता है। एक कागज के ऊपर, एक लेटर हेड के ऊपर जो मेन टर्म्स जो है वो अगर दोनों की डिफाइन हो जाए, उसके ऊपर दोनों का साइन हो जाए, दैट इज सफिशिएंट इनफ, दैट इज आल्सो एन एग्रीमेंट। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वो वैलिड माना जाता है? पेपर, प्लेन पेपर पे भी दोनों पार्टी ने साइन किया है तो वैलिड माना जाता है। कोई भी एक लेटर हेड के ऊपर साइन ले लो, लेकिन प्लेन पेपर के ऊपर भी अगर साइन किया हुआ है तो इट इज वैलिड। तो फिर स्टैम्प पेपर का क्या वैल्यू है कि 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, कोई 500 रुपए का स्टैम्प पेपर, वो फिर क्यों चाहिए अगर प्लेन पेपर पे वैलिड होता है तो? वो फिर उसके अंदर लीगालिटी जो है वो आ जाती है, और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करता है स्टैम्प पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड एग्रीमेंट इज समथिंग डिफरेंट, दैट मींस यस, ऑल एग्रीमेंट्स जो है दे आर नॉट वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। तो उसमें कहाँ मेजर डिफरेंस कहाँ पे रहता है, क्या किस पॉइंट पे डिफरेंस है? वो लीगलाइजेशन का ही है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना। अच्छा ओके, इफ इट इज ऑन अ स्टैम्प स्टैम्प पेपर के पेपर ऊपर देन आप पे इट इज द करके जो, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो एग्रीमेंट है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करता है। एक और इशू आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जैसे जो लोग काम करते हैं बाद में पेमेंट के टाइम बोलते हैं वो ईएसआई सर्टिफिकेट दीजिए, अपना पीएफ का वो दीजिए, वो बाद में शुरू करते हैं। तो पेमेंट रोकना होता है ना उनको 30 डेज के बाद, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रोज मांगने लगते हैं। या कमलेन, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, यू कैन राइट इट, आई एम रीडिंग इट एंड आई विल आस्क द गेस्ट। वो जब पेमेंट हाँ, के टाइम में वो अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगने लगते हैं तो बेचारा वो ट्रबल में आ जाता है, छोटा एमएसएमई की, ये अभी ये नया डॉक्यूमेंट दो, अभी नया डॉक्यूमेंट दो, ऐसे डिले करते रहते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन क्या है कि उनको डे 1 पे ही पता रहे अभी कि वो भाई बाद आपको में क्या क्या अगर डॉक्यूमेंट चाहिए? आपने अगर एग्रीमेंट किया हुआ है हम्म तो उसके अंदर वो चीज लिखी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसके अंदर वो चीज लिखी रहेगी। लेकिन अगर नहीं लिखी है तो कहीं ना कहीं उसका क्या बोलते हैं, उसको मेंशन किया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सिंगल लाइन का, ऑल कंप्लायंसेस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर और द कॉन्ट्रैक्टर, उतना एक लाइन में लिखा होता है। अभी उसके अंदर सब कुछ आ गया हाँ, तो ऐसा वो तो हमको एग्री नहीं करना चाहिए एज ए हाँ, वेंडर है। हाँ, तो वो अगर आप वेटिंग करवाते हो तो आपको वो जो रेड लाइट है, जो रेड जोन है, डेंजर जोन है, वो पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे ये कंप्लायंसेस भी आने वाले हैं। तो आप आपके कॉस्ट के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं या उसको अलग से मांग सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ हो गया उसके बाद अगर है, then there are different ways, either you go for arbitration clause है तो उस हिसाब से आप arbitration में जा सकते हैं, या there are other ways to go into the arbitration। नहीं, अभी कमिंग बैक टू आर्बिट्रेशन, इसमें आर्बिट्रेटर कैसे सेलेक्ट होता है? जो दोनों पार्टी को एग्रीड हो आदमी बस ऐसे ही सेलेक्ट होता है? मतलब व्हाट इज द वे, या कोई आर्बिट्रेटर का पैनल्स बना हुआ है उनमें से आपको लोग सेलेक्ट करने पड़ते हैं? हाउ डज इट गो अबाउट?
वेरी क्विकली अगर आप बताएं, बिकॉज आवर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। दो तीन चीजें हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि हु विल बी द आर्बिट्रेटर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा है वही आर्बिट्रेटर, उसी पैटर्न से आर्बिट्रेटर सिलेक्ट होगा। या तो फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि एज पर आर्बिट्रेशन एक्ट आर्बिट्रेशन विल बी फॉलोड, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं विच आर नॉट गुड, लेकिन ऐसे आते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको दोनों मिलके जो भी आर्बिट्रेटर, कोई एक आर्बिट्रेटर के ऊपर आप फिल्टर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो आर्बिट्रेटर रहेगा। देयर आर वेज कि या तो जिसको डिस्प्यूट है वो रेकमेंड करेगा कि ये एक आर्बिट्रेटर है जिसको मैं जानता हूँ, ये अपना दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन का काम करेगा। अगर सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात है। अगर दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है, एक आध महीने के अंदर वो डिफाइन नहीं हो रहा है, तो दूसरे आप या तो फिर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो होती है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो कि हमको कोई आर्बिट्रेटर दो जिससे कि हम आर्बिट्रेशन करवा सके। तो उनके पैनल के लिस्ट देते हैं, उसके अंदर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एल्स यू टू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द आर्बिट्रेटर। थैंक्स, परफेक्ट। हाँ, एक कमलेंद्र जी का क्वेश्चन है कि मैंने एक कोटेशन किया पार्टी को और पार्टी ने वो कोटेशन का रेफरेंस दे के मेरे को ऑर्डर दे दिया, तो ये वैलिड, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो कोटेशन का कंडीशन है वो सब वैलिड माना जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, या कैसे होगा? अगर पार्टी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ रेफरेंस दे दिया है और उसको बोल दिया है कि यस इट इज, आपको परचेज ऑर्डर उसी के ऊपर रेज कर दिया है, तो उसका मतलब सीधे सीधा ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके कोटेशन के अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ओके, ये तो जगह पे हमको मैं मतलब बोलूंगा, कोटेशन स्टेज पे ये जगह पे मैं बोलना चाहूंगा कि बताइए अगर हमने कोटेशन एकदम सिंपल दे दिया जिसके अंदर कोई ज्यादा टर्म्स नहीं दिए, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के कोई प्रोसेसेस नहीं लिखी हुई है, और अपने को इस तरह से एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो बाकी की जो चीजें हैं वो डिस्प्यूटेड रह जाएगी। वो पीछे से जाके अपने को रिजॉल्व करने की बात आएगी। ये बात ठीक है। तो इसीलिए तो जब हम मतलब कोटेशन बनाते हैं उस वक्त कोटेशन भी डिटेल्ड बनाना चाहिए। अच्छा, तो हम आपसे एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं कोई, कि जो कोटेशन के साथ हम पार्ट ऑफ द कोटेशन भेज दें कि दीज आर आवर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सप्लाई, है ना? ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वो अच्छा तरीका हो जाएगा, वो थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएगा। एक बार वो डॉक्यूमेंट वन टाइम ही बनवाना है और वो फिर उसमें सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगा, जितने भी पॉइंट्स हैं। कमलेंद्र, ऑडियो तो आ रहा है, आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? बिल्कुल ऑडियो इज वेरी क्लियर। एनीबडी एल्स हैविंग इशू विद द ऑडियो? कुछ किसी मेंबर को हमारे ऑडियो नहीं आ रहा है, शायद उनको कुछ इशू होगा उनके कनेक्शन में, इंटरनेट कनेक्शन में। फाइन सर, तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। इट्स 8:45 आई थिंक वी वर अलॉटेड टाइम टिल 8:40, so nice of you. I think you have elaborated on so many things and the members would have made the best use of the knowledge you have shared. If anybody has any question, they can type and then I can ask Sunil bhai. Thanks Sachin Thank ji, you. happy that you liked. कमलेंद्र भाई, आई थिंक ऑडियो में आपके कुछ इशू था इंटरनेट कनेक्शन में, बट बिकॉज टू ऑल ऑफ अस द ऑडियो वाज प्रीटी क्लियर. I think Avdesh ji has some Happy that question. you liked. Yeah, the members have really liked your deliberation, sir, and we will try to make best use of it in our future contracts with the Thank you. customers. So अवधेश nice, शर्मा जो है उनका कुछ क्वेश्चन है। किसका? अवधेश शर्मा। शर्मा जी का शायद क्वेश्चन, हाँ, रेरा से रिलेटेड था। रेरा अच्छा, मतलब सप्लायर और उसका होता है, या रेरा इज बिटवीन द प्रॉपर्टी बायर एंड द बिल्डर?
रेरा में रेरा सप्लायर जो और बिल्डर का थोड़ी होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक दैट इज बिटवीन द नहीं, वो बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर करवाने का रहता है। वो ठीक है, बट उसमें वेंडर्स भी कहीं आते हैं क्या कहीं? वी एज नहीं, वेंडर्स सप्लायर। नहीं आते हैं, लेकिन वेंडर्स नहीं आते हैं, वेंडर्स के साथ रेरा का कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं लेकिन है, जो ओके। प्रॉपर्टी बायर्स है उनके साथ है उनके साथ कि कनेक्शन है, ओके ओके। उनके प्रोटेक्शन के लिए रेरा है। हाँ, बट एक बात बताइए कि जैसे अगर किसी बायर ने एक फ्लैट खरीदा किसी बिल्डिंग में और वो बिल्डर किसी दूसरे को भी ना बेच दे, इसके लिए वो रेरा में कैसे जाके बताए कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो चुका है इस प्रॉपर्टी का? जैसे कई बार बिल्डर अभी दो दो उसकी लोगों को जरूरत बेच नहीं देते है, हैं। नहीं है, अभी क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। वैसे हाँ, महाराष्ट्र में महारेरा ने अभी उसको नियम बनाया है कि बिल्डर जो है वो किसी को बेचता है या बुक करता है किसी के नाम से, तो वो रेरा में इन्फॉर्म करेगा, लेकिन वो अभी 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 लास्ट वीक ही बना है, तो वो प्रोसेस आने में महाराष्ट्र में भी अभी टाइम लगेगा, हर जगह पे अभी नहीं है ये चीज। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, बिकॉज दैट वाज माय क्वेश्चन कि एक को बेच दिया उसके बाद वो बायर रेरा को इन्फॉर्म कर दे या उसकी वेबसाइट पे डाल दे कि आई हैव गॉटन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सच एंड सच बिल्डर फॉर सच प्रॉपर्टी, एंड वो जिससे दूसरे को ना बेच पाए। नहीं, अभी अभी हर जगह पे ये प्रोविजन नहीं है। नहीं है। So thank you, Sunil bhai. Thank you very much for your time थैंक यू। and the wonderful deliberations. I think all of us got to know something or the other, very new about the legal things. And it is extremely important that we all get our contracts vetted from a lawyer. We should not see this as a cost, but this is an insurance against any future problems. And once we have Sunil bhai, like brilliant person in our group, we should make best use of his services. Thanks Sunil bhai once थैंक यू again. संजय जी, Take थैंक यू really, संजय जी thank फॉर you very much. एंगेजिंग Bye-bye. discussion, and thank you team of creators for giving me opportunity to discuss. Thank you. Thank you sir. Thank you very much. Pranam. Bye.